Okay, we have two types of covalent structures. We have simple covalent molecules. एक हमारे पास होते हैं simple covalent molecules और दूसरे होते हैं giant covalent molecules. Giant covalent molecules are also known as macro molecules. अच्छा, giant covalent molecules नहीं कहते इनको, actually इनको giant covalent structures कहते हैं. और simple covalent molecules उसमें we use the word molecule, and for giant covalent we use the word giant covalent structures. Or you can also call them macromolecules, but you should know both names. Simple covalent molecules are those molecules like water, H2O, chlorine, hydrogen gas, carbon dioxide gas, nitrogen dioxide gas. तो जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाई थी और एक हमने लिस्ट लिखी थी ना, these all are simple covalent molecules, and all simple covalent molecules have low melting and boiling points. All simple covalent molecules have low melting points and boiling points. And giant crystals are few which are included in our syllabus. This includes one giant covalent structure is diamond that we have to study, and it is made up of carbon elements only. The other one is graphite. Graphite is also made up of carbon elements only. One we have silica. ठीक है. Yes, अभी यहाँ ionic compounds की वही properties हैं बस. Okay, for simple covalent molecules have low melting and boiling points. हमें ये बात समझनी है why simple covalent molecules have low melting and boiling points, whereas giant covalent structures have high melting and boiling points. देखो, if we compare ionic compounds and metals, I hope you guys have an idea what change of state is. Change of state is when we have to convert any solid into liquid or liquid into a gas. This is not a change of state, right? So melting and boiling are types of change of states. What happens during a change of state? For example, if you want to convert a solid into a liquid, so what you are actually doing is solid particles are close to each other. These particles can vibrate about their fixed positions, but they cannot leave their positions, right? Why they cannot leave their position? Because there are forces of attraction between the particle which are known as bonds. In case of ionic compound, these bonds are ionic bonds. In case of metal, these bonds are metallic bonds. But when we heat a solid, these particles, in case of ionic compound, these particles are ions, oppositely charged ions. In case of metal, these are metal positive ions. When we heat any solid, these particles gain energy. And when these particles gain energy, what happens? They overcome the forces of attraction between them. This forces of attraction in case of ionic compound is an ionic bond. Or in other words, you can say if you give heat to a solid, the particles gain enough energy to overcome the forces of attraction between them. Or you can also say the bonds between these particles starts to break. When the bonds between these particles are broken, these particles can now finally move about each other. एक दूसरे से दूर दूर हो जाते. The only difference between solid and liquid is that in solid, particles are fixed in their position. They cannot leave their position. However, in liquids, particles can move about each other. They get irregularly arranged.
And for the particles to move about each other, first they have to overcome the forces of attraction. And how can they overcome the forces of attraction between them? When we supply them heat, they gain kinetic energy. They move more vigorously. And a time comes when they move away from each other. If we keep heating a liquid, it will boil to form a gas, and the particles gain enough energy to move far apart from each other. And we say कि gas liquid से gas बन गया. So in case of ionic compounds, in order for these particles to move away from each other, you have to supply a huge amount of energy so that to break the bonds between these particles. Like sodium ion and chloride ion are the particles in an ionic compound. If we take the example of sodium chloride, you have to break a large network of ionic bonds ताकि ये एक दूसरे से move हो सके, दूर हो सके. In case of metal, you have to break a large network of metallic bonds. But in case of simple covalent molecules, you actually do not have to break a covalent bond. Simple covalent molecules होते हैं ना, like water. Water is H2O. The bonding in water is oxygen atom has made covalent bond with 2 hydrogen atoms. इसमें क्या होता है कि 2 water molecules, they are attracted to each other by a force of attraction, and this force of attraction is known as weak intermolecular force of attraction. Another name for this weak intermolecular force of attraction is van der Waals forces. देखो, जब water की जो solid state है, that is ice. In ice, water molecules are close to each other, fixed in their positions. And these water molecules are all attracted to each other by intermolecular forces of attraction. ये forces इतनी weak होती हैं कि इनके नाम में weak है. These forces are so weak कि इनके नाम में weak लगाया हुआ है. These are weak intermolecular forces of attraction. When you heat a solid state of any simple covalent molecule, what happens? एक covalent bond तक तो आपने पहुंचना ही नहीं है. You do not have to break the covalent bond. When you heat a solid state of a simple covalent molecule, so these weak van der Waals forces or weak intermolecular forces are broken very easily. बहुत थोड़ी सी heat पे ये break हो जाती है. And as soon as these forces break down, the water molecule move away from each other. तो वहीं पे change of state हो जाता है. So simple covalent molecules में change of state means you have to move 2 molecules away from each other. You do not have to break a covalent bond. अगर बेटा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है ना वाटर का, देखो जब भी उस वक्त 1 मिनट में पूछ रहा हूँ, जब भी हमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है ना, अगर तो हमें वाटर को आइस को मेल्ट करवाने के लिए, वाटर स्टेट में लाने के लिए, लिक्विड स्टेट में लाने के लिए अगर उसका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता, तो पहली बात तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दे तो फिर वो आइस वाटर थोड़ी बनती, वो तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनके अलग अलग हो जाती. इट मींस when we are changing the state of a simple covalent molecule, we are not actually breaking the covalent bonds. We are just overcoming the weak intermolecular forces of attraction. These forces are so weak that they break down by a small amount of energy. That's why simple covalent molecules have low melting and boiling points. अगर water की change of state करवाने के लिए covalent bond break करना पड़ता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो फिर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो होता तकरीबन 100,000 डिग्री सेल्सियस. सही है जी. उस बेटा पूछो क्वेश्चन. जी सर, तो जब हमारे weak intermolecular forces of attraction, so इसका मतलब है low melting and boiling points, so like strong intermolecular forces of attraction, इसका मतलब है high melting and boiling points. आई डोंट नो, पता नहीं आवाज क्यों बाकी सबके पास उस वक्त की आवाज सही आ रही है? नहीं सर, कट रही है. कट रही है. आई थिंक माइक का प्रॉब्लम लग रहा है.
आपकी आवाज ना वैसी आ रही है जैसी वो स्टीफन हॉकिंस की आती थी ना। एग्जामिनर क्वेश्चन देता है इससे मतलब अटैच। वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा व्हाई सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वो आंसर मैं लिखवा दूंगा अभी। बस ठीक है सर। जी और हिबा तो बच्चे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो कंपाउंड है उनके जो बीच में फोर्सेस है वो कौन सी फोर्सेस है? जितने भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है सब में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। देखो जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है ना उन सब में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एक्सेप्ट फॉर जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स, जो कि हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमें याद होंगी। बाकी ऑल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन देम। तो सर इनके दरम्यान में बॉन्ड्स नहीं ब्रेक होते, मतलब वो सिर्फ जो फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर वही ब्रेक होती है, राइट? यस एग्जैक्टली। ओके फाइन, थैंक यू सर। Had you been breaking the covalent bonds, it means what ice will have a melting point of 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ पानी नहीं होता फिर दुनिया में। सर ऐसा क्या होता है कि इनके बीच में लाइक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, लाइक इसके पीछे रीजन क्या है? उस पर डिटेल में हम जाएंगे नहीं बच्चे, तो बहुत आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। वे आउट ऑफ द कोर्स जाना पड़ जाएगा। बेटर वी लीव इट। किसने पूछा था ये, अभिहन या उस्मान? अच्छा। there are no such forces as strong intermolecular forces। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ वीक होता है। चले आगे। हो गए सबके क्वेश्चन? अच्छा अब क्वेश्चन देखो, इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उसने ये पूछना है। लेट्स से इफ ही इज टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, देन यू हैव टू रियलाइज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ simple covalent molecule, and he will ask why carbon dioxide has a low melting and boiling point whereas sodium chloride has a high melting point. So if you have realized that carbon dioxide is a simple covalent molecule, you just have to write the reason, जो कि सेम रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, वाटर के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी। जितने भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है दुनिया के लिए सबके लिए रीजन सेम है कि व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, वो आप इसको याद कर लेना। व्हाई सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, एक्सेट्रा, हैव लो melting and boiling points। Simple covalent molecules have weak intermolecular forces between the molecules, which requires less amount of energy to be broken। उसका बेटा कुछ पूछ रहे हो आप? ओके दैट्स इट। चलें आगे, लिख लिया सबने? सर जी बेटा। सर ये जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लाइक इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट होगा, मैं समझ नहीं आई। देखो ये ब्रेक होंगी
तो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, जब वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो मेल्टिंग हो गई, और दूर दूर होंगे तो बॉइलिंग हो गई। तो ये ब्रेक होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग होगी ना सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की। क्योंकि ये वीक होती हैं तो ये इजिली ब्रेक हो जाएंगी, कम एनर्जी पे ब्रेक हो जाएंगी, कम एनर्जी पे ब्रेक होंगी तो इजिली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हुआ ना सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का। और सर जो कंपाउंड होते हैं जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक क्यों होती हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन है? रीजन बिल्कुल है, लेकिन बच्चे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो फिर बहुत ज्यादा कोर्स से बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए। यू हैव टू रिमेंबर दैट, ये आप ए लेवल में पढ़ते हो कि हाउ कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अराइजेस एंड व्हाई दे आर वीक। तो हम वो डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे ना, वो पूछेगा आपसे। ठीक है। ओके सर। अली पूछ रहे हो कुछ? सर आप थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिएगा। पूछे करूँ? सर और थोड़ा मतलब प्रॉपर्टीज पर। मैंने आपको डॉक्यूमेंट का लिंक भेजा होगा ना लास्ट क्लास में, नहीं भेजा था? सर बस मुझे एक चीज कॉपी करनी थी। अच्छा, मैं ना ओके इस सर, थैंक यू। फोल्डर का लिंक भेज दूंगा आपको। बहरहाल ये तो आज सर मेरे की इस पास है। चैप्टर की लास्ट क्लास है। अदरवाइज अब जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको एक लिंक भेजा करूंगा, उसी में अपडेट होता जाएगा, और फिर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब देखते हैं जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स ना हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 टाइप के हैं, हमें वही पढ़ना है। एक है उसमें से डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है सिलिकॉन। अच्छा, so diamond basically is a giant covalent structure. Why it is known as a giant covalent structure? Because it has a large network of covalent bonds, just like in ionic compounds and in metals, जहाँ जिसमें लार्ज नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स बना हुआ था, तो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स में भी हमारे पास लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होता है। अब कार्बन के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक डायमंड होता है और एक होता है ग्रेफाइट। तो पहले हम डायमंड देख रहे हैं। तो डायमंड इज मेड अप ऑफ मैनी कार्बन एटम्स एंड ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें सारे कार्बन के आपको 4 बॉन्ड्स तो नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो हमें रोकना है ना। और सेकेंडली ये 3D स्ट्रक्चर होता है, हमने तो 2D में बनाया हुआ है। इसका जो शेप होता है ना वो इस तरह से होता है, और इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल बनता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको कभी भी वो बनाने के लिए नहीं कहेगा, बस आपको इसकी डायग्राम पहचाननी होगी। अगर ये बना बनाया आ जाए तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डायमंड। और डायमंड में सारे कार्बन एटम्स होते हैं। डायमंड में ईच कार्बन एटम in diamond is bonded to 4 other carbon atoms. As all the 4 valence electrons of carbon are bonded to other carbon atoms, so there are no free electrons left. And the shape of the diamond is the tetrahedral shape. And of course, there is a large network of carbon-carbon covalent bonds. ये स्ट्रक्चर है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? बिकॉज डायमंड हैज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन-कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इसको ब्रेक करने के लिए यू हैव टू सप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई डायमंड आल्सो हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, व्हाई डायमंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर आप कैसे करोगे?
diamond has a giant covalent structure so huge amount of energy is required to break many covalent bonds. Similarly, if we see the other properties of diamond, diamond cannot conduct electricity because it has no free electrons. ये सब नीचे लिखी हुई है. Diamond has a very high melting point because of large network of carbon-carbon covalent bonds. Diamond does not conduct electricity as there are no free electrons. And diamond is hard and brittle. ठीक है, hard and brittle होता है diamond. Brittle मतलब when you apply a force over diamond, तो it will just break down और crack करेगा, bend नहीं होगा. जैसे metal bend होता है ना, वैसे diamond bend नहीं होगा. Sir, Because structure is G. sir, do we have to learn the properties? Yes, you have to learn the properties. You have to learn these 4 points about the structure of diamond. और आपको structure बनाना नहीं है. Structure is very simple in diamond. Each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms like this. ठीक है, and this structure keeps continuing itself. कार्बन के साथ और कार्बन जुड़ते जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा जाइंट नेटवर्क बन जाएगा, मतलब एक बड़ा सा सिस्टम बन जाएगा. So, ठीक sir, है, do बनाने we के लिए have नहीं आता, to, बस देख. we just have to recognize the structure, right? यस, तस्वीर दिखाएगा पहचानना होगा. ठीक है उस वक्त. एंड जैनब सर इसमें आज थ्योरी पढ़ें? में तो कोई पेपर नहीं है. थ्योरी पेपर में Theoretical सवाल question. जाएगा ना. Theory question है. Why diamond does not conduct electricity? You have to write there are no free electrons. Why diamond has a high melting point? Because it has a giant covalent structure. ओके सर. ठीक है, बस इस तरह से Thank you. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. Uses of diamond याद रखना. Diamond of course is used as a jewelry, and as it is very hard, it is used for cutting and drilling purposes. मतलब ये जो कटिंग ब्लेड होता है ना, उसके लिए यूज होता है. और कटिंग मार्बल्स की कटिंग करने के लिए, ग्लास की कटिंग करने के लिए डायमंड का ब्लेड यूज होता है. चलें आगे. Yes, sir. Sir, जी बेटा. sir, how it's used for cutting and drilling purposes? I don't Because it is understand. very hard. It is जैसे नाइफ का ब्लेड होता है ना, इट इज मेटल, मेटल का एलॉय बनाया हुआ होता है. डायमंड इज हार्डर देन दैट. मतलब अगर आपको मार्बल काटना है ना, मार्बल के जो पहाड़ होते हैं, तो यू कैन नॉट कट इट विद द ब्लेड ऑफ अ मेटल. यू हैव टू यूज डायमंड बिट और डायमंड ब्लेड. उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हार्ड होता है. ठीक है, Okay, sir. इसको याद कर लो. अब स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा डिटेल हमें जाना नहीं है यहाँ से. कुछ चीजें जो है ना, मैं कहीं पे आपको रोक दूंगा, क्योंकि अब हमें कोर्स टाइमलाइन और कोर्स आउटलाइन भी फॉलो करना है ना. अच्छा, graphite on the other hand is also made up of carbon elements only, but there is a huge difference between diamond and graphite. You know what graphite is? Graphite is your pure carbon. Diamond is also your pure carbon. Diamond भी एलिमेंट कहलाता है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स है. ग्रेफाइट भी एलिमेंट कहलाता है क्योंकि उसमें भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम है. ठीक है. अच्छा, अब फर्क क्या है? डायमंड, यू गाइस नो व्हाट डायमंड इज. ग्रेफाइट क्या होता है? जो पेंसिल लेड होती है, पेंसिल लेड इज ग्रेफाइट. ठीक है, इट इज वेरी चीप इन फ्रंट ऑफ डायमंड. दोनों बने हुए तो एक ही एलिमेंट्स हैं, तो फर्क क्यों है? प्रॉपर्टीज में भी. डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, डायमंड इज हार्ड एंड ब्रिटल, ग्रेफाइट इज ग्रे और ब्लैक इन कलर, एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. पेंसिल से जब आप पेंसिल को पेपर पे प्रेस करते हो तो क्या होता है? ग्रेफाइट की लेयर्स निकल के पेपर पे आ जाती है. ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स ओनली. मतलब मैं इसको
एक मिनट देखो, ग्रेफाइट में ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वी हैव वन कार्बन एटम, इट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो ये हेक्सागोनल रिंग्स बन जाते हैं इस तरह से, और ये बनते रहते हैं बहुत सारे, इसलिए ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर ही होता है। और ये जैसी एक लेयर है ना ऊपर वाली, इसके नीचे बिल्कुल ऐसे ही एक और लेयर होती है, और इसके नीचे बिल्कुल एक और लेयर होगी ऐसे ही। तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बट ये जो लेयर्स है ना, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते। ऊपर लेयर्स में बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड है। देखिए, ऊपर एक लेयर को अगर देखो तो इट हैज अ जाइंट लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। लेयर्स हैव लार्ज network of covalent bonds, but in between the layers there are no covalent bonds. In between the layers they have only weak intermolecular forces, जैसे simple covalent molecules में होती है। but it doesn't mean कि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि जब आप लेयर्स के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं। लेयर्स को अलग अलग करके आप ग्रेफाइट को मेल्ट थोड़ी कर रहे हो। मेल्ट तो तब होगा जब कार्बन अलग अलग होंगे। तो जो ऊपर वाली लेयर्स में इतना बड़ा नेटवर्क बना हुआ है कार्बन का, जब तक वो ब्रेक नहीं करोगे तो मेल्टिंग नहीं होगी इसकी। लेयर्स के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से जब आप पेंसिल को पेपर पे प्रेस करते हो तो वो वैन डर वाल्स फोर्सेज ब्रेक हो जाती हैं, और जो लेयर्स हैं ग्रेफाइट की वो स्लाइड होके पेपर पे आ जाती है, राइट। यहाँ मतलब सर मुझे देखो, आपके पास ग्रेफाइट जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स है। इस लेयर्स को ना हम ऐसे बना देते हैं, चलो जैसे आपकी बहुत सारे पेजेस आप एक के ऊपर एक रखो ना, तो पेज तो इटसेल्फ इंटैक्ट है ना, लेकिन पेज के नीचे जो दूसरा पेज है, दो पेजेस के बीच में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली होती है, थोड़ी लाइट सी वो होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब आप इस पे प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे मेटल्स की लेयर स्लाइड कर रही थी ना, वैसे ग्रेफाइट की लेयर्स भी स्लाइड कर जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो ग्रेफाइट बीच में से ब्रेक हो जाता है। तो व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ओवर ग्रेफाइट, लाइट फोर्स, तो लेयर स्लाइड होके पेपर पे आ जाएगी। तो पेंसिल से लिखते हो ऐसे ही तो लिखते हो आप। पेंसिल को जब प्रेस करते हो पेपर पे, तो ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में वी हैव दीस वैन डर वाल्स फोर्सेस or weak intermolecular forces that breaks down, and the layers they slide over one another and comes out of the graphite solid, और वो पेपर पे आके गिर जाएंगे, पेपर पे आके चिपक जाती हैं। जब भी तो आप इरेजर से वापस उन लेयर्स को रोल ऑफ करके हटा देते हो। लेकिन जो लेयर्स है ना इटसेल्फ, उनके बीच में बहुत सारे कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो उनको इसको मेल्ट करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो है ग्रेफाइट का, लेकिन ग्रेफाइट हार्ड नहीं है जैसे कि डायमंड है। सही है ज़ैनब, ये सब लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। उस वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात भी बता रहा हूँ। देखो, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स ओनली। कार्बन वैसे 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट में 4 बॉन्ड नहीं बनाता वो। तो ईच कार्बन एटम हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मैं डॉट से बना रहा हूँ ना रेड कलर में ऊपर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Graphite is the only non-metal that can conduct electricity due to the presence of free electrons. So in graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms, forming parallel layers of hexagons. तो सिर्फ इसको इतना याद कर लेना, in graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. So each carbon atom, sorry, इसकी भी नहीं बनाने के लिए नहीं आएगा।
Sir, मतलब सर किस टाइप से देते हैं वो ग्रेफाइट? ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज बता दो, स्ट्रक्चर बता दो। स्ट्रक्चर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बस ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये लिख लेना अपने पास, ये याद होने चाहिए। ओके सर, थैंक sir, जी बेटा। सर जो ग्रेफाइट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर मतलब वो जो है उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, या जो बॉन्ड्स है। नहीं, स्टेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्टेट चेंज इसलिए नहीं होगी कि ऊपर बहुत सारे बॉन्ड है, जब तक हम वो ब्रेक नहीं करेंगे तो कार्बन कार्बन एक दूसरे से दूर नहीं जा सकता। सर उसके लिए फिर जो ऊपर जो फोर्सेस है, बॉन्ड्स, हमें उनको ब्रेक करना होगा उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। जी एग्जैक्टली। ओके फाइन सर। सर जी सर सर दोनों का फोर्थ पॉइंट। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी जो है वो डायमंड ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है ग्रेफाइट से? नहीं, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम नहीं है। डायमंड इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, whereas graphite is a hexagonal rings that are arranged in parallel layers. The structure is very different. तो सर स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा एक्सपेंसिव है डायमंड? Yes, डायमंड अपने स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसकी वजह से डायमंड बेसिकली एलिमेंट तो सेम है, कार्बन है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, एक तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, ऊपर से वो हार्ड होता है। और एक्सपेंसिव डायमंड हार्ड होने की वजह से इंडस्ट्रियल यूज जो है वो ड्रिलिंग बिट है, लेकिन डायमंड एज ए ज्वेलरी जो यूज हो रहा है ना, वो एक्सपेंसिव तो हमने बनाया हुआ है उसको, अदरवाइज डायमंड इज जस्ट कार्बन। ओके सर। एंड सर अगर हम लोग इसको मेल्ट करेंगे ग्रेफाइट को, तो फिर इसकी जो ये बॉन्ड वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक होंगी? देखो, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक होने से ग्रेफाइट मेल्ट होगा नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ लेयर्स के बीच में है ना, बाकी पूरी जो ऊपर वाली लेयर है उसमें इतने सारे कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे तो कार्बन एटम एक दूसरे के अबाउट मूव नहीं कर सकते। तो मेल्ट करने के लिए यू हैव टू ब्रेक मेनी कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स इन ईच लेयर, देन द ग्रेफाइट विल मेल्ट। ओके सर, थैंक यू। And again, there are so many carbon carbon bonds, covalent bonds, so it means you need to supply a huge amount of energy to break these bonds. Hence graphite also has a high melting point. सही है, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, सिर्फ इनको माइंड याद रखना। सर 4 नहीं लिखना? Layers of graphite are connected by weak van der Waals forces, और weak van der Waals forces की जगह you can also write intermolecular forces. And for properties of graphite, because each carbon atom in graphite has one free electron, so graphite conducts electricity because there is a free electron present to each carbon atom. Graphite has a high melting point because of large network of carbon-carbon covalent bonds. And graphite is soft and slippery because layers can slide over each other due to weak van der Waals forces. वो slide करेंगी layers, लेकिन melt नहीं होगा वो उससे। सर वो And स्लाइड क्यों uses of करती graph, है? ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, जैसे पेज होता है ना, इफ यू जस्ट डैश अ स्टैक ऑफ पेपर्स, एक स्टैक ऑफ पेपर्स है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर आपने पेज रखा, ठीक है, अगर आप उन पे फोर्स अप्लाई करो साइडवेज, तो वो पेपर्स किस तरह से स्लाइड कर जाते हैं, जैसे वो डेक ऑफ कार्ड्स होता है, उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करो तो कार्ड्स की एक एक करके स्लाइड करते हैं ना, तो ग्रेफाइट की लेयर्स भी ऐसे स्लाइड कर जाते हैं, राइट? यस सर। Uses of graphite is used in pencil leads, you all know that. It is also used as a lubricating oil. Lubricating oil इसलिए यूज होता है क्योंकि लेयर स्लाइड हो रही है एक दूसरे पे, तो वो स्लिपरी होता है। Lubricating oil basically is your oil that you use in machinery for lubricating purposes, like engine oil of a cars. तो ग्रेफाइट जो है गाड़ी के इंजन ऑयल में डलता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं यूजेस पे। और ग्रेफाइट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इज बेसिकली
thing that you use in car batteries for the conduction of electricity. अभी इलेक्ट्रोड जो है ना हम आगे इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, but for now just remember the use that graphite are used as an electrode because they are good conductor of electricity. चले आगे। इस ज्यादातर का काम है थ्योरेटिकल है। अब इसमें आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, लेकिन मैं उसको खुद अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो समझाने के लिए बहुत हाई लेवल पे जाके चीजें बतानी पड़ेंगी जिसको करने का भी कोई फायदा नहीं है वो लेवल में हमें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर ये जिस तरह अभी आपने कहा कि ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल की लेड में इस्तेमाल होता है एज अ सॉलिड, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? ग्रेफाइट के पीसेस करके ना हम लोग उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल में डाल देते हैं, क्रश करके उसको। ओके जो गाड़ी का इंजन ऑयल होता है ना, कभी अगर बॉटल हाथ लगे इंजन ऑयल की तो उसमें इंग्रेडिएंट्स देखना ग्रेफाइट भी लिखा हुआ होता है। ओके सर। सर आप थर्ड वाला पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोड वाला अभी मैं ये बता रहा था कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज होता है, बट द एक्चुअल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोड वी विल स्टडी इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पे अच्छा समझ आएगा। ये अभी यहाँ पे याद कर लेगा, पूरा चैप्टर है इसमें। Sir, जी बेटा। how is graphite a good conductor of electricity? Because in graphite each carbon atom has one free electron. Here, this is the point 2. Each carbon atom has one free electron. That's why it can conduct electricity. Because free electrons है इसलिए electricity conduct कर रहा है, just like metals. Okay, thank you. Okay. There are some uses of diamond. Differences between diamond and graphite. ये पढ़ लेना. Nothing. Similarities क्या है? They both have high melting and boiling points. But diamond is transparent, graphite is black in color. Diamond is hardened and brittle, graphite is soft and slippery. Diamond does not conduct electricity, graphite conducts electricity. And both are very less reactive. They do not react with anything easily. Okay, the third giant covalent structure is silicon dioxide. This is also known as silica. इसका फॉर्मूला होता है SiO2. और this is also known as silicon 4 oxide. सर आप थोड़ा सा आपका करेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये वाला यस सर, थैंक यू। सर मैंने ले अच्छा लिया। नहीं लिया सर ले लिया। ओके। अच्छा जी, सिलिका is just like diamond, but the only difference is that it has two elements, silicon and oxygen. We have one silicon is also from group 4, just like carbon. So one silicon atom is bonded to 4 other carbon atoms. Similarly, all of these 4 carbon atoms are bonded to 4 other silicon atoms. ये structure जो है ना वो चलता जाएगा. It is just like diamond and graphite giant covalent structure है. बट डायमंड का शेप और सिलिका का शेप एक जैसा ही है, टेट्राहेड्रल शेप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डायमंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स है और सिलिका में वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो अगर इन दोनों की डायग्राम साथ साथ बनी हुई आ जाए तो आई होप यू कैन रिकॉग्नाइज, बिकॉज डायमंड में यू विल ओनली बी हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो एक ही साइज का एटम दिखेगा। जैसे मैं एक साथ साथ रख के बना देता हूँ दोनों की डायग्राम ना। अगर मैं डायमंड और क्या कहते हैं सिलिका एक साथ रख दूं तो डायमंड
में देखो क्या है, सारे के सारे एक ही साइज के एटम्स है ना, दिस शोज के सब कार्बन के ही हैं। सिलिका में we have two different sizes of atoms. One is silicon and the other ones are oxygen. शेप जो होता है इसका भी, सिलिका का भी टेट्राहेड्रल होता है। सिलिका एज इट इज अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, तो इसका भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज यू हैव टू ब्रेक many covalent bonds. Silica also does not conduct electricity as there are no free electrons. ठीक है, सिलिका बेसिकली सैंड को कहते हैं, जो मिट्टी होती है वो सिलिका ही होती है। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बिकॉज मैनी covalent bonds does not conduct electricity as there are no free electrons. Sir, ठीक है जी बेटा। इसका फॉर्मूला SiO2 है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि each silicon atom is surrounded by 4 oxygen atoms. जी देखो, जब कोवलेंट्स this is silicon 4 oxide actually this is not an ionic compound. तो हम आयनिक कंपाउंड का जिस तरह से फॉर्मूला देखते हैं ना, वैसे हम इसका देख नहीं सकते। अब इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, इफ वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड वी टेक द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन दीस टू, तो दिस वुड कम आउट टू बी 1:2। राइट, आपकी बात सही है कि सिलिकॉन और एक सिलिकॉन के लिए 4 का ऑक्सीजन है। सॉरी मैंने कार्बन बना दिया था यहाँ पे, दीज आर ऑक्सीजन। एक सिलिकॉन के लिए 4 ऑक्सीजन है, तो इसका जो फॉर्मूला होना चाहिए वो SiO4 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब हम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले बनाते हैं ना, तो वो इस तरह से नहीं बनाते। हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो जब लेते हैं तो वो SiO2 बनता है। सही है, तो जैसे आयनिक कंपाउंड का देखा था वैसे नहीं देखना है इसका फॉर्मूला। और कोवलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मूला मेकिंग हमने करनी नहीं है, हमें सिर्फ इनके फॉर्मूले याद रखने होते हैं। जी रामीन, मैंने सॉरी ऑक्सीजन की जगह कार्बन बना दिया था, तो दीज आर ऑक्सीजन एटम्स नॉट कार्बन। सही है रामीन? ठीक है, सर हमारी संडे को so एक्स्ट्रा we are क्लास done with होगी। this chapter. सॉरी क्या कह रहे एक्स्ट्रा हो? क्लास होगी संडे को? सर मैं संडे को बेटा एक्स्ट्रा क्लास होगी। ट्राई कर रहा हूँ कि टाइम मैनेज करूँ किसी तरह से, तो मैं आपको ना कल तक इन्फॉर्म करवा दूंगा टाइम। ओके सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसके पास पेपर्स करना है हमने, तो एक्स्ट्रा क्लास में ना मैंने यही प्लान किया हुआ है कि इसके पास पेपर्स करके ना चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है सर। Actually, from coming Tuesday we'll start a new chapter that would be states of matter. ओके सर। ठीक है, अच्छा meanwhile When will be test? टेस्ट अभी मैं करवाता हूँ अनाउंस ना। कमिंग आई थिंक कुछ लोगों के एग्जाम की स्कूल के असेसमेंट चल रहे हैं ना, तो कमिंग वीक के एंड पे करेंगे या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में करेंगे टेस्ट। लेकिन पहले मैं सर पास आप पेपर्स करवाऊंगा फिर टेस्ट होंगे। हसन क्या कह Sir, रहे would the हो? test be about this chapter? यस Okay. सर मैं कह रहा हूँ आप कमिंग वीक में कर लें, सही रहेगा। ओके, जस्ट वेट फॉर अ डे ना, कल इन्फॉर्म कर देंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट से पहले आई हैव टू मेक श्योर के वी डू दी पास्ट पेपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन द क्लास। आप लोग होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। हमने थोड़े से किए थे कोवलेंट बॉन्डिंग के ना, एमसीक्यूज किए थे, पर मैं थोड़े से आई थिंक पेपर 2 इसके हमने शायद किए थे, थोड़े बहुत किए थे ना। थोड़े से पास्ट पेपर्स में और करवाना चाह रहा हूँ, मैं खुद करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर हम लोग इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलो वो क्लास जो होगी पास पेपर्स की मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कल रात तक। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हाँ अभी जा सकते हो आप।
ओके सर, लास्ट लास्ट में, एंड मेक श्योर कि रिवाइज कर लेना आज और कल में, ताकि जब क्वेश्चंस करने बैठे तो आपको चीजें याद हो। पूरा चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है ये।